Anyone please tell me if I'm audible properly? Am I audible? Tanmay, Sagar, Sagar Kandare, right? एको या फिर ऐसा कुछ इम्प्रॉपर आवाज ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर है? So what I'll do is I'll straight away share the data book with you. I hope all of you have a pen, classwork copy, and calculator along with the data book. Uh, Not to worry, data book I'll be sharing on the screen also. But still, if you have it and simultaneously if you flip the pages, it will be an added advantage to you all. So keep that in mind to have a pen, copy, calculator, and data book with you. Right? Calculator is a must since you all will have to actually calculate and tell me the answers in real time. So that is something you all have to do. Okay. Till now 15 students have joined, so I'll wait for some more time before we actually start again. In the meantime, I guess we can start with the introduction to the chapter, right? So I guess we can start with it. Let me change some settings so that I can see who all are online. Okay. And, full screen. I will change to this. Okay. Okay, my question is, can you see the data book on your screen? Okay, thank you. Is there any lag or any problem with the voice, echo, anything like that? It is perfectly audible, right? Okay. So without wasting any more time, I think we should start with the introduction to the per gear design. So yes, like I said in the last introductory lecture we had many days before, there I told you that this subject has 4 units only. So, but yes, individual design problems are many more in individual units. So, to cover a larger portion in a real quick time, in a shorter amount of time, what we are going to do is, we'll be starting with unit number 3 first. Now, unit number 3 is about per gear, helical gear, and bevel gear. So, my motto is, if we finish this unit, I can assure you that you in any worst case scenario, you will be in a position to solve 20 marks question. So RT minimum ऐसा होता है कि directly they ask you a 20 mark numerical most of the times, or they ask you 17 or 16 marks numerical and very normal, very common theory for 3 to 4 marks, right? So there can be a question on spur gear, there can be a question on helical gear, there can be a question on bevel gear also, right? Similarly, in unit number 4, you have design of worm gear, and you also have design of IC engine components. So after this unit number 3 gets over, we will be starting with unit number 4, and after that we will be doing the rest 2 units as and when the situation demands, right? So
With that, having said that, let us start with a basic theory that we require to start with the design of per gear. Right? Uh, Today I have taken care that along with the along with the video, my audio also gets recorded, and probably I will try to put it on YouTube so that it is usable for you afterwards also. Right? Um, this is again a new thing for me. So last video I messed up. So this will not happen today. So this video will be available to you for if you want to watch it otherwise after the class gets over. Right? There are few instructions that I have posted on Google Classroom. I guess you can see. Let me show you. Let me share that screen to you. Okay. I guess you can see my entire screen now. Please reply. Oh, thank you. So, okay, thank you. So, like I'm highlighting right now, I have put your timetable on the DMD classroom wall. Next, this is something very important that I have to share with you all. The attendance link will be visible only for 15 minutes after the class gets over. And that is the reason a time period of 15 minutes has been kept within 2 consecutive lectures. You will be receiving a quiz immediately after the class gets over, and you will have to solve that quiz within those 15 minutes and mark your attendance. Only those people who will be solving the quiz will be marked as present. So let us keep that in mind. Those questions are you have to attempt. I'm repeatedly telling you, you at least have to attempt those quizzes to be eligible for attendance marking. That is something that you have to keep in mind. Next, few DC students are going to join us. So if you have anyone in your contact, you can just tell them that classroom invites have been sent to them, and they just have to join the classroom as early as possible. And this is particularly I'm talking about design of mechanical drives. Similarly, other classroom invites will also be made to them. Like you people received email invites to join the classroom, those people have also been sent email invites. So please ask them to join as early as possible. We are also trying to contact them, and if anyone is in contact with you, you please tell them to. Next and last and the most important is, yes, these 4 things are very much required: a pen, a classwork copy, data book, and a calculator. This is something that should be done in real time. If you don't do it, the whole purpose of studying this subject will get defeated. Everything that you are going to study in design of mechanical drives will depend on how much you practice. Right? So what I've been following is I'll take few numericals, let us say 2 or 3 numericals per design topic. These are lengthy numericals, obviously, because they are asked for 20 marks. So these are lengthy numericals. So make sure you don't leave the class in between. Otherwise, I'm not saying it will be impossible. It will be really hard for you to read and understand it later on. Obviously, I'll be sharing all the written hand notes with you in the same platform. The scanned copies, I have already made them. So yes, you will be receiving scanned copies dedicated to individual topics in your Google Classroom already. But that does not mean that you don't solve it on your own. See, this is something that we have to do, because if you don't do it, you may not be in a position to solve it in the exam. This is something that has to be practiced, that has to be done, and you have many more components to study. If we talk about per gear design, you have roughly, let me check, you have around
17-18 steps to for per gear design only. 17-18 distinct steps. So you have to understand them. You have to डेटा बुक है इसलिए सारा का सारा डेटा अपने पास अवेलेबल रहता है ऐसा नहीं है. कुछ कुछ एजम्पशंस अपने को दिमाग में रखने पड़ते हैं जो अपने को फॉलो करने होते हैं. एजम्पशंस आपके डेटा बुक में नहीं दिए होते हैं. एजम्पशंस अपने को खुद याद रखने पड़ते हैं. So that is something you have to keep in mind. So with that, I have already taken 11 minutes of your time. I think we will start with the basic theory that we should know behind the design of spur gear. Right? We all know spur gear. We have seen it in the introductory class. Spur gear have their teeth parallel to the axis of the gear. They can be used on shafts that are parallel. And if we talk about gears in general, these are toothed members which transmit rotary motion from one shaft to the another. One great thing about these gears is these are among the oldest devices that mankind have devised. These are one of the oldest, right? Primary function is mechanical power transmission, right? These are very rugged and durable and reliable type of drives. Gear drives in general I am talking about. I will come to spur gear design later. If I talk specifically about spur gear, their transmission efficiency is very high. When I say transmission efficiency, spur gear transmission efficiency is in the range of 98%. Like only 2% power is lost, and that is the topmost level. Like maximum 2% power will get lost. Yes, certain downsides are also there. They are costlier than belt drives. They are costlier than chain drives. Gear manufacturing cost is very high, and they require specialized manufacturing processes to give the level of precision that is required for the gear to operate properly. Right? See, I am discussing this theory with you. This theory is very widely available. Gears में हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, यही चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. लेटर ऑन मे बी बाय द एंड ऑफ द कोर्स आई विल शेयर क्लास नोट्स लाइक theory notes with you, but I really want to tell you this is not required. Theory points ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे अमाउंट 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं मैक्स टू मैक्स, गियर्स में तो भी कम से कम, बाकी तो थ्योरी पूछते भी नहीं है. तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है. ये चीजें ऐसी है कि समझो, दिमाग में रखो और उसको रिप्रोड्यूस करो एग्जाम में डायरेक्ट. इट इज नॉट समथिंग लाइक यू स्टडी, यू रिमेंबर एंड देन यू राइट. और बहुत कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे, तो आपको ऐसे अलग से इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गियर ड्राइव, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मैं ये बोलूंगा कि इनको पॉजिटिव ड्राइव बोला जाता है. पॉजिटिव ड्राइव मतलब इनमें स्लिपेज नहीं होता है, क्योंकि दो गियर के. हाँ बोलिए कुणाल. स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन में दिखाने लायक कुछ भी नहीं है. हाँ, so let me see if I can open a PPT and then share it to you, but okay fine, let me do that. हाँ, wait a minute. Okay, now I think the PPT is visible, right? Is it, Kunal? Yes. I did not deliberately do it because ये PPT आप देख चुके हो, ये PPT ऑलरेडी आपके पास है. मैं सिर्फ पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, so that थोड़ा सा एक माहौल बनेगा सब्जेक्ट पढ़ने से पहले. मैं डायरेक्टली जो न्यूमेरिकल पे जंप करूंगा तो दैट विल नॉट गिव यू प्रॉपर फील.
तो यस, कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले तो पॉजिटिव ड्राइव है. एज यू कैन सी पॉजिटिव ड्राइव मतलब इसमें स्लिपेज नहीं होता है. अगर आप बेल्ट ड्राइव की स्पेसिफिकली अगर फ्लैट बेल्ट ड्राइव की बात करते हैं तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव में बेल्ट जो है वो स्लिप होता है पुली के ऊपर से, और उसके हिसाब से इसको पॉजिटिव ड्राइव नहीं बोला जाता. और पॉजिटिव ड्राइव है इसी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी रेशियो जो है इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. Second characteristic, general characteristics. General characteristics मतलब this can be applied to any general purpose gear. इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी कॉम्पैक्ट होता है. इसका मीनिंग मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आपको रेंज ऑफ वेलोसिटी रेशियोज जो मिलती है तो उतनी रेंज ऑफ वेलोसिटी रेशियोज को जितनी जगह आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है वो जगह पर गियरिंग के लिए सबसे कम होती है. मतलब कम से कम जगह में आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी रेशियोज मिलते हैं. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि गियर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन होता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज वी कैन ट्रांसमिट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पावर. Very large amount of power can be transmitted with gear drives. In fact, gear drives are the only drives which can reliably transfer large amount of power. Other drives are not reliable enough to transmit that much amount of power. Next is they can transmit power at very low velocity. This is again something very important. If you take an example of the operation of lift, वहाँ पे लिफ्ट जो है वो बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे होती है. तो वहाँ पे आपने को पावर तो उतना ही लगता है, अपने को टॉर्क तो उतना ही लगता है, बट जो ऑपरेटिंग वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है. तो गियर ड्राइव्स आर दोज ड्राइव्स व्हिच कैन ट्रांसमिट पावर एट लो वेलोसिटी आल्सो. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी हैव already discussed. The transmission efficiency of general gear drive is very high. इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है barring some gear type. अब वर्म गियर जो होता है उसका ट्रांसमिशन एफिशिएंसी पर गियर, हेलिकल गियर या बेवल गियर जितना नहीं होता है, बिकॉज पर गियर आर मेंट फॉर समथिंग एल्स. मतलब ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं उसके अलावा दे आर मेंट फॉर समथिंग एल्स. पर वर्म गियर्स आर peculiar टाइप ऑफ गियर ड्राइव and that's why they do not operate at very high efficiency. तो अगर वर्म गियर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है इज वेरी हाई. लास्ट एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज आप गियर ड्राइव में गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं. जैसे कार में अलग अलग वेलोसिटी रेशियोज को आप ऑप्टेन करते हो बाय शिफ्टिंग दैट गियर. अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि हमने लेट ऑपरेट की तब बेल्ट ड्राइव में भी तो हमने अलग अलग वेलोसिटी रेशियोज ऑप्टेन किए, बट आई थिंक इट इज विजिबल टू यू कि लेट में वेलोसिटी रेशियो चेंज करना और गियर में सिर्फ नॉब से वेलोसिटी रेशियो चेंज करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. गियर शिफ्टिंग करना विद द हेल्प ऑफ अ गियर नॉब इज मच इजियर देन व्हाट यू डू ऑन अ लेफ्ट. So this is one of the characteristics. बट कुछ अच्छा ही है तो कुछ बुराइयाँ भी है. कौन सा ऐसा है कि कॉस्टली होते हैं गियर ड्राइव एज कम्पेयर टू बेल्ट एंड चेन ड्राइव. इसलिए आपने देखा होगा कि लेकिन आपको गियर शिफ्टिंग के लिए गियर बॉक्स नहीं दिखा, वहाँ पे आपको कोन पुली अरेंजमेंट दिखी बेल्ट की. मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लिकेटेड होती है, स्पेशलाइज मैन्युफैक्चरिंग लगती है, माउंटिंग बहुत केयरफुल रखती है, अदरवाइज वो पीस जो है वो टूट जाते हैं गियर से. क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए होता है और कॉन्स्टेंट लुब्रिकेशन की जरूरत इसको पड़ती है. तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आई वुड से आर देयर associated with gear drive in general. Now, how do we select a gear drive? That is something that we have to. जैसे आप कहीं पे गए, आपको आपने बोला कि यहाँ पे मुझे वेलोसिटी रेंज की जरूरत है, तो आप गियर ड्राइव, अब अपने पास कौन से 4 ऑप्शन है. अपने पास है फर्स्ट गियर, अपने पास है हेलिकल गियर, अपने पास है डीजल गियर, अपने पास है वर्म गियर. आप कौन सा गियर ड्राइव सिलेक्ट करोगे? तो पहला पॉइंट आता है जिसके ऊपर सिलेक्शन ऑफ गियर ड्राइव बेस्ड होता है. दैट इज जनरल लेआउट ऑफ शाफ्ट. शाफ्ट पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है. अपने को पता है कि अगर पर गियर ड्राइव मुझे यूज करना है तो शाफ्ट का पैरेलल होना जरूरी है. इसके सिवाय मैं आई कैन नॉट यूज पर गियर ड्राइव. Second point is speed reduction. This is something, see, whatever I am saying now, these things will be asked in Viva, these things will be asked in your 3 marks questions that may appear in your RTM exam. This will be required when you are actually solving design problem. So keep that in mind, whatever I am saying. मैं ऐसा कुछ गिबरिश बात नहीं कर रहा हूँ. दिस इज समथिंग, ये डेटा की जरूरत आपको बार बार पढ़ने वाली है, तो ऐसा ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ.
नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ गियर ड्राइव डिपेंड्स ऑन स्पीड रिडक्शन कितना लगने वाला है. स्पीड रिडक्शन नाउ सी इफ आई टॉक अबाउट per gear drive in general can transmit velocity ratio up to 6:1. मतलब इनपुट और आउटपुट में जो रेशियो स्पीड में जो रेशियो रहेगा दैट इज 6:1. बट अगर हम प्रिसीजन पर गियर लेते हैं प्रिसीजन पर गियर कैन ट्रांसमिट अप टू 10:1. मतलब अगर आपका इनपुट 100 आरपीएम है तो आपका आउटपुट 100 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 10 आरपीएम रह सकता है. अगर आपका इनपुट 1000 आरपीएम है तो आपका आउटपुट 1000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 100 आरपीएम रह सकता है. Next is power to be transmitted. Now more or less all the gear drives transmit similar amount of power, but when it comes to transmitting very high amount of power, certain special arrangement of gears has to be used. Yes. Okay. Anyone else facing this problem? Nikhil, you are also not listening. मतलब proper आवाज नहीं आ रहा है. Let me switch off the fan. Maybe that will help. Now. I don't know, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. मेरा नेटवर्क कनेक्शन वही है. मैंने जो ब्लूटूथ ईयरपीस पहना हुआ है वो भी सेम है. एवरीथिंग इज सेम, नथिंग इज सेम. तो एग्जैक्टली क्या इश्यू हो रहा है? अच्छा, तो मैं थोड़ा लाउड ही बात कर रहा हूँ तो भी आपको मतलब जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो नहीं सुनाई आ रहा है. थोड़ा नॉइस है तो ओके. थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है ना. बैकग्राउंड नॉइज है. ओके, व्हाट आई विल डू इन नेक्स्ट क्लासेस आई विल चेंज हिज ईयर पीसेस. अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है तो बेयर विथ मी. चलेगा? हाँ, ये क्लास बेयर कर लो मेरे साथ. अगले क्लास में आई विल चेंज द ईयर पीसेस. मे बी द प्रॉब्लम इज विद ईयर पीसेस. इट हैपेंस समटाइम्स. बेयर विथ मी. ये क्लास के लिए अलग से अपन ने ब्लूटूथ हेडसेट खरीदे हुए हैं. If those are not working, so there is some serious problem. Okay, let us start. इनपुट स्पीड कहाँ से आने वाला है, उसका कॉस्ट हम कितना बेयर कर सकते हैं. उसके बाद में नॉइजी ऑपरेशन रहना चाहिए कि नॉइज चलता है कि नहीं चलता है, वाइब्रेशन चलते है कि नहीं चलता है. इसके ऊपर हमारा सिलेक्शन डिपेंड होता है गियर ड्राइव का. ठीक है. नाउ कॉस्ट इज समथिंग दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आई गेस. नॉइज, नाउ एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर गियर से काम बनता है तो फिर इतने टाइप के गियर क्यों? पर गियर क्यों, हेलिकल क्यों, फिर ट्यूबल क्यों, फिर वन गियर क्यों? तो हर एक गियर का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. राइट. जैसे पर गियर बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ गियर. पर उनका प्रॉब्लम ये है कि पीस स्ट्रेट होने के कारण पूरा एक पिनियन का टिप गियर के पीस के साथ एक साथ कॉन्टैक्ट में आता है. तो उसकी वजह से नॉइज जो होता है वो जरा ज्यादा होता है पर गियर के ऑपरेशन में. राइट. अब नॉइज हो रहा है, दो चीजें टकरा रही है तो वाइब्रेशन भी आएगा. तो इफ आई टॉक अबाउट पर गियर स्पेसिफिकली, तो पर गियर के ऑपरेशन में नॉइज और वाइब्रेशन इनहेरेंट है. अभी मुझे ऐसा गियर ड्राइव चाहिए था जिसमें नॉइज और वाइब्रेशन नहीं आए. तो क्या किया मैंने, चीज की वजह से नॉइज और वाइब्रेशन आ रहा था. तो व्हाट डिड आई डू, मैंने वो चीज को स्ट्रेट में रखते हुए अपन ने उसको एक एंगल दे दिया जिसको अपन ने हेलिक्स एंगल बोला. राइट. तो हेलिक्स एंगल देने के कारण वो एक नया गियर टाइप बन गया और उसको अपन ने बोला हेलिकल गियर. तो उससे नॉइज और वाइब्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. बट एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई. बाकी सारे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पॉजिटिव्स है पर गियर ड्राइव के, वो आपको हेलिकल गियर में देखने को मिलेंगे. बट कॉस्ट बढ़ गई. दे आर कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू पर गियर ड्राइव. प्लस उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी स्पेशल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है. राइट. बट अगर आपको नॉइज और वाइब्रेशन नहीं चाहिए देन यू हैव टू गो फॉर हेलिकल गियर. Right? So these are some selection criteria that based on which we select the gear drive. Now let me introduce you to some definitions that we will be requiring throughout the design process. सबसे important, अगर सबसे primary अगर मैं कुछ बोलूँगा तो that will be your module. Module is the ratio of diameter divided by number of teeth. This T stands for number of teeth. थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है. T stands for number of teeth. Now
डायमीटर आप बोलोगे तो डायमीटर हमने देखा है कि गियर का अगर हम ये देखो गियर का नॉमेनक्लेचर आपके सामने है। यहाँ पे कितने डायमीटर आप देख सकते हो, ये सबसे नीचे वाला डायमीटर, बीच वाला डायमीटर, ऊपर वाला डायमीटर, तो कौन सा डायमीटर पकड़ना है? तो हमने ये पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन कि हम लोग 6 सर्कल डायमीटर लेते हैं। व्हेन आई से गियर ड्राइव तो उसको उसका डेजिग्नेशन देने वाला एक ही डायमीटर होता है और वो होता है 6 सर्कल डायमीटर। हम आउटर या फिर इनर डायमीटर नहीं लेते हैं, ठीक है। So this D is CCD, that is 6 circle diameter divided by number of pitch will give you module, right? Now what is circular pitch? Circular pitch अगर आप देखते हो तो it is basically pi multiplied by module. Now see, ये pi है और d by t है, d by t क्या होता है? module. So circular pitch is given by pi multiplied by module या फिर pi d by t. ये मॉड्यूल का जो उल्टा जो देखा जाता है तो 1 बाय मॉड्यूल विल गिव यू डायमेट्रल पिच। तो ये 3 चीजें, ये पीपीटी मैंने ऑलरेडी शेयर की है आपके साथ गूगल क्लासरूम में, तो थोड़ा सा ये 3 चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। 1 इज मॉड्यूल, इनवर्स ऑफ मॉड्यूल इज डायमेट्रल पिच एंड पाई मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूल विल गिव यू सर्कुलर पिच। ये 3 फॉर्मूले अपने को बिल्कुल टिप ऑफ द टंग में होने चाहिए, राइट। So with that I'll stop sharing this PPT and now I would ask you to take out your pen and copy. We are going to start with the design of per gear and we will be writing our first numerical. So I'll be dictating it to you and you have to simultaneously write it. See, पहली बार आई थिंक आप लोग न्यूमेरिकल क्लास में पढ़ रहे हो, पहली बार मैं भी क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ, तो आई थिंक वी विल हैव टू गिव इट सम टाइम। थोड़ा सा मेरी तरफ से क्या अच्छे से मैं कर सकता हूँ, आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए, ऐसा करके वी विल फाइंड आउट द बेस्ट वी कैन डू, राइट। तो मैं एक तरीका आज ट्राई कर रहा हूँ। आई एक्सपेक्ट योर फीडबैक ऑन द वे आई विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ये तरीका अगर नहीं अपने को इतना कारगर लगता है आपको और मुझे मिल के दोनों को एक साथ, तो कल हम दूसरा एक तरीका ट्राई करेंगे और ऐसे धीरे धीरे हम लोग एक तरीके पे पहुंचेंगे जहाँ पे आप भी कंफर्टेबल रहोगे, मैं भी कंफर्टेबल रहूंगा पढ़ाने के लिए और आप कंफर्टेबल रहेंगे पढ़ने के लिए। सो विद दैट आई वुड लाइक टू गेट योर फीडबैक। डज एवरीवन हैव पेन, कॉपी एंड अ कैलकुलेटर? यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। सीरियसली मैं हर किसी को देख नहीं सकता, आई डोंट हैव एनी ऐसी कोई डिवाइन पावर टू एक्चुअली टेस्ट कि आप लोगों के पास पेन, कॉपी, कैलकुलेटर है क्या, बट अगर आपके पास है तो आप पढ़ोगे और सॉल्व कर पाओगे और ये सब्जेक्ट का कुछ मीनिंग एक बाहर निकल के आएगा। अदरवाइज डिसफंक्शनल होके नहीं रहना है अपने को फंक्शनली एक्टिव रहना है और फंक्शनली पढ़ना है जितना हो सके, राइट। सो विद दैट आई विल बी स्टार्टिंग विद प्लीज स्टार्ट राइटिंग। Design the 20-degree full depth piece. Design the 20-degree full depth piece of a pair of per gear to transmit a smooth continuous load of 25 kilowatts at 1440 rpm. Okay. Full stop. Okay, मैं काम करता हूँ ना, मैं काम करता हूँ। आई विल शेयर दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, राइट। वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरा कम्युनिकेट करने से बेटर, ठीक है। लेट मी शेयर दैट प्रॉब्लम। हाँ दिख रहा है अभी? कैन यू सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट? राइट, तो आप लिखिए, साथ साथ मैं पढ़ता भी हूँ। डिजाइन the 20-degree full depth piece of a pair of per gear to transmit smooth continuous load of 25 kilowatts at 1440 rpm 1440
RPM. The drive should be as compact as possible with speed reduction of 3:1. The gear and pinion are made of steel with proper heat treatment. Is your problem statement. Please let me know when you are done writing the problem statement. Manibhadra, am I audible to you now? Okay. Please make use of chat अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो तो, or you can unmute yourself and you can interrupt me in between. It's absolutely fine. तो आप चैट का भी यूज कर सकते हो. चैट भी एक अच्छा फीचर है जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख के? Shall we move forward? I'll require your feedback. Otherwise, I won't be able to go forward. Okay. So I guess this much time was sufficient for you to write down that problem statement. Now, let us start with actual design process. Let us see the numerical first, and let us try to see what is the given data in this numerical and what are the different types of numerical that you may encounter in your RPM exam. राइट. तो देखो, सबसे पहले तो ये बोला होगा कि डिजाइन 20 डिग्री फुल डेप्थ स्पीड. काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन अगर थोड़ा उड़ता उड़ता भी याद होगा तो हमने वहाँ पे टाइप ऑफ स्पीड प्रोफाइल ऐसा कुछ सुना हुआ था. टाइप ऑफ स्पीड प्रोफाइल, उसमें हमने 14.5 फुल डेप्थ, 14.5 सब इनवॉल्यूट, 20 डिग्री फुल डेप्थ, ऐसे गियर प्रोफाइल देखे हुए थे. नाउ गियर प्रोफाइल इज समथिंग विच कैन सेटिस्फाई गियरिंग लॉ या फिर लॉ ऑफ गियरिंग. अगर लॉ ऑफ गियरिंग 2 गियर्स में सेटिस्फाई करना चाहिए तो उसको ये 3 जो स्पीड प्रोफाइल होती है उसमें से कोई एक स्पीड प्रोफाइल सिलेक्ट करनी होती है. कौन सी 14.5 सब इनवॉल्यूट, 14.5 फुल डेप्थ, 20 डिग्री फुल डेप्थ. आपको 99.99% केसेस में 20 डिग्री फुल डेप्थ दिया रहेगा. थोड़ा सा ये चीजें आप सुनो और दिमाग में रखने की कोशिश करें. 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट ये न्यूमेरिकल में 99% केसेस में दिया रहेगा. या फिर दूसरी केस ये हो सकती है कि आपको एग्जाम में या फिर न्यूमेरिकल में टीप प्रोफाइल दिया ही नहीं रहेगा. अगर आपको टीप प्रोफाइल नहीं दिया रहेगा आपके न्यूमेरिकल में तो आपको बिना कुछ सोचे 20 डिग्री फुल डेप्थ स्पीड एज्यूम कर लेना है. तो दिस इज समथिंग that you have to assume 20 degree full depth if it is not given in the numerical. अगर अलग दिया हुआ है तो अगर 14.5 सब इनवॉल्यूट दिया हुआ है तो आपको वो टीप प्रोफाइल लेना पड़ेगा. बट अगर नहीं दिया है तो आप 20 डिग्री फुल डेप्थ अज्यूम करोगे. अच्छा, क्या डिजाइन करना है? डिजाइन अ पेयर ऑफ स्क्वायर गियर. नाउ पेयर ऑफ स्क्वायर गियर्स में आता है एक पिनियन, एक गियर. हम सबको पता है कि जो छोटा गियर होता है, 2 अगर गियर मैच में है तो जो छोटा गियर होता है उसको हम पिनियन बोलते हैं, राइट. और जो बड़ा गियर होता है उसको हम गियर बोलते हैं, राइट. तो इसके बाद जब भी मैं बोलूंगा पिनियन तो आपको समझ जाना है कि जो 2 गियर मैच में है उसमें से छोटे गियर को अपन ने पिनियन बोला. अगर मैंने गियर बोला तो आप बोलोगे कि बड़े गियर की बात है. ठीक है. नाउ आई वुड लाइक यू पीपल टू थिंक कि आपको क्या लगता है, पिनियन फास्ट चलना चाहिए फॉर अ गिवन इनपुट या गियर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर 2 मैच में होने के बाद, ऑब्वियसली मैच में होने के बाद अगर दोनों मैच में है, पिनियन एक गियर मैच में है, तो फास्ट ज्यादा आरपीएम वाला कौन सा रहेगा? it will obviously be, yes, it will obviously be the smaller gear. It will obviously be the smaller gear, that is pinion. Pinion will run faster as compared to gear. So usually until and unless specified otherwise, again I am repeating, until and unless specified otherwise, pinion will be your driving member. एक गियर पेयर में एक ड्राइविंग मेंबर होता है, एक ड्रिवन मेंबर होता है, राइट. तो until and unless it is specifically mentioned otherwise, हर केस में पिनियन विल बी योर ड्राइविंग मेंबर, पिनियन विल बी योर ड्राइविंग मेंबर एंड गियर विल बी योर ड्रिवन मेंबर, राइट. तो आपका जो भी आईसी इंजन रहेगा, इलेक्ट्रिक मोटर रहेगी, वो पिनियन को कनेक्ट रहेगी और पिनियन गियर को चलाएगा और गियर से हमको आउटपुट मिलेगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड.
एनी प्राइम मूवर जो होता है आपका आईसी इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, जो भी आपका प्राइम मूवर रहेगा, प्राइम मूवर विल मूव द पिनियन, पिनियन विल रन द गियर, और जो अपनी मशीनरी चलेगी वो गियर चलेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन से जो पावर ट्रांसमिशन होना चाहिए वो स्मूथ कंटिन्यूअस होना चाहिए, या फिर जो लोड है उसके ऊपर आने वाला है कि लोड, दैट विल बी स्मूथ एंड कंटिन्यूअस लोड। अब इसका यूज हम क्या करने वाले हैं, ये जब मैं आपके सामने डेटा बुक शेयर करूंगा तब आपको मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। कितना लोड है, 25 किलोवाट का लोड है, कितने आरपीएम पे, 1440 आरपीएम पे, तो 25 किलोवाट का रेटेड पावर। जो आपको देखो, जो भी न्यूमेरिकल में गिवन होता है ना, न्यूमेरिकल में जो भी गिवन होता है इट इज रेटेड पावर। ये आपको लिखते चलना है आपकी कॉपी में, ठीक है। ऐसा मत समझो कि आपको सब कुछ याद रहने वाला है, या फिर चलो यार सर तो यूट्यूब पे डालने वाले हैं तो अपन बाद में देख लेंगे और लिख लेंगे, ऐसा नहीं। साइमल्टेनियसली जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपके वर्ड के हिसाब से, आपके वर्डिंग के हिसाब से आपकी कॉपी में मेंशन करना है, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल में दी हुई वैल्यू होती है पावर की, इट इज रेटेड पावर, इट इज कॉल्ड एज रेटेड पावर डिनोटेड बाय P सफिक्स R। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ दिस रेटेड पावर इज डिनोटेड बाय P सफिक्स R at 1440 आरपीएम, राइट। 1440 आरपीएम काय का आरपीएम दिया हुआ है, हायर आरपीएम, इट इज पिनियंस आरपीएम। तो पिनियंस आरपीएम we denote by N1, pinions RPM we denote by N1. Keep these things in mind. The drive should be as compact as possible. Now see, we know gear drives are compact, so ये थोड़ा सा redundant data है। उसके बाद में लिखा हुआ है with speed reduction of 3:1, मतलब इनपुट आरपीएम अगर 1440 है तो स्पीड रिडक्शन मुझे 3 का चाहिए, मतलब मेरा आउटपुट कितना हुआ, my output will be 1440 pinion RPM divided by the speed reduction ratio, that is 3। तो कितना होता है 1440 divided by 3, बताइए anyone, 1440 divided by 3, 1440 divided by 3 will give you right 480, right, I got the answer 480। तो मुझे डेटा पढ़ के ये समझ में आ गया कि मुझे 25 किलोवाट का रेटेड पावर ट्रांसमिट करना है, पिनियन स्पीड जो है वो 1440 आरपीएम है, स्पीड रिडक्शन रेशियो 3:1 का है, मतलब मेरा जो गियर चलेगा वो 1440 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 480 आरपीएम पे चलना चाहिए। तो अगर मुझे N1 मिल गया 1440 आरपीएम, तो क्या मुझे वेलोसिटी रेशियो से N2 भी मिल गया? यस, और N2 कितना है 480 आरपीएम, राइट। नाउ मटेरियल, नेक्स्ट टाइम क्या बोलती है, द गियर एंड पिनियन आर मेड ऑफ स्टील, मतलब इसका मटेरियल दिया हुआ है, गियर और पिनियन का मटेरियल दिया हुआ है विथ प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट, राइट। लेकिन स्टील बोला हुआ है, अब स्टील को एक ही तरीके का ही कैसे, स्टील एक ही होता है क्या? नहीं, देयर आर वेरियस टाइप्स, राइट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील that are present. Let me present something else. So let me take you to the design data book. थोड़ा सा आपको मैं एक बार ये दिखा देता हूँ, कौन सा नहीं, I'm just showing that table to you, I'm not sitting bench में है। लेट मी स्क्रॉल, साइमल्टेनियसली आप स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रीन पे देखिए, अगर आपको आपके पास खुद का डेटा बुक है, अगर आपके पास जो होना चाहिए मुझे लगता है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। 14 और 13 16 और आगे जाना पड़ेगा अपने को। मेनी थैंक्स टू विलास, उसने ये पूरा का पूरा डेटा बुक स्कैन किया, बहुत बहुत फायदा हुआ उसकी वजह से। सीरियसली डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आप देख सकते हो 16 ओके, तो इज द डेटा बुक विजिबल? यस, तो 16-1 से आप देख सकते हैं कि डिजाइन फॉर्मूले फॉर स्पर गियर्स अपने चालू होते हैं। यहाँ पे अगर मैं डिजाइन पावर देखता हूँ तो इट इज PR, where PR is rated power multiplied by KL, ये 1 जैसा दिख रहा होगा बट ये L होता है, KL, and KL stands for load factor। आप देख सकते हो देयर आर वेरियस टेबल्स जिसके ऊपर टाइप ऑफ लोड के ऊपर आप
देखो टाइप ऑफ लोड अपना कौन सा है, स्टेडी कंटिन्यूअस है, स्टेडी टाइप ऑफ लोड एंड कंटिन्यूअस मतलब 24 आवर्स अ डे। तो आप अगर स्टेडी के लाइन में कंटिन्यूअस के नीचे देखते हो तो अपने को फैक्टर मिलता है केएल का 1.25 और ये यूज होता है टाइप ऑफ लोड का, जो अपने न्यूमेरिकल में दिया हुआ था कि लोड टाइप इज स्टेडी एंड कंटिन्यूअस। तो स्टेडी कंटिन्यूअस जैसे बोला वैसे मुझे केएल की वैल्यू मिलती है जो स्टेडी और कंटिन्यूअस के लाइन में हो, विच इज इक्वल टू 1.25। so that is something that you have to keep in mind. Then what else I would like to show? I'd like to show you the type of material that we use. These are the module values that we will be using, right? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि there are various, हाँ ठीक, this table I wanted to show you, table number 16-10. अगर मैं स्टील की भी बात करता हूँ तो देयर कैन बी फोर स्टील, देयर कैन बी कास्ट स्टील, देयर कैन बी अलॉय स्टील। इसमें से कौन सा, न्यूमेरिकल में सिर्फ स्टील बोला हुआ, कौन सा स्टील ये मुझे सिलेक्ट करना है, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, राइट? सो विद दैट लेट अस मूव बैक टू द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। और उसके बाद में बोला है प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट। प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट जब भी बोला तब अपने को ध्यान में रखना है कि जो भी मटेरियल हमने सिलेक्ट किया उसका BHN कितना है ये अपने को बताना पड़ता है। BHN स्टैंड फॉर ब्रिनल हार्डनेस नंबर। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब ये गियर डिजाइन जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, गियर पर गियर डिजाइन या फिर हेलिकल गियर डिजाइन या फिर अपना बीगल डिजाइन या फिर वाउंड गियर डिजाइन। ये सारे चारों डिजाइन प्रोसेसेस दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला पार्ट ए गियर डिजाइन होता है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल का, ठीक है। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आपकी इतनी है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट इतनी है, ये 20 मार्क के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है पास में, ठीक है। 94 का क्वेश्चन है, उसके बाद भी सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन का आपको पार्ट ए पार्ट बी में सॉल्व करना पड़ता है। पार्ट ए में आपको गियर डिजाइन करना पड़ता है। गियर मतलब गियर एंड पिनियन, गियर मतलब गियर पेयर को डिजाइन करना पड़ता है। दैट विल बी योर पार्ट ए। पार्ट बी विल बी योर डिजाइन ऑफ द pulley in the sense the gear blank, sorry let me rectify myself, आपको पार्ट बी में गियर ब्लैंक डिजाइन करना पड़ता है। गियर ब्लैंक मतलब ऐसा मेटल का टुकड़ा जिसमें से आप आपकी गियर्स को मैन्युफैक्चर करने वाले, ठीक है। तो दैट गियर ब्लैंक डिजाइन विल फॉर्म योर पार्ट बी। तो ये जो स्टेप्स है, जो ये देखो, ये जो पहला न्यूमेरिकल है इसको मैं स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल करके आपके सामने रखता हूँ हमेशा। उसके पीछे रीजन ये है कि इस न्यूमेरिकल में मैंने शेयर बंद किया है, तो प्लीज डोंट, ऐसा मतलब डरने की बात कुछ नहीं, मैंने अपनी तरफ से शेयर बंद किया है। तो ये न्यूमेरिकल ऐसा है जो जिसमें आपको सारी की सारी स्टेप्स पता चल जाती है। इसके बाद से जो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं उसमें सारी की सारी स्टेप्स जरूरी रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। पूरी की पूरी जितने 18, 19, 20 स्टेप्स है वो पूरी की पूरी इस न्यूमेरिकल में अपने को देखने को मिलेगी। और अगले प्रॉब्लम्स में इन स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स अपने को ओमिट भी करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ न्यूमेरिकल। कभी कभी अगर जैसे ये स्टेटमेंट में कुछ भी बोला हुआ नहीं है कि गियर ब्लैंक डिजाइन करना है कि नहीं करना, पर 20 मार्क के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन, तो ये अपने को समझना चाहिए कि गियर ब्लैंक मुझे डिजाइन करना पड़ेगा, गियर ब्लैंक मुझे डिजाइन करना पड़ेगा, ये मुझे समझ जाना चाहिए। कोई कोई न्यूमेरिकल 16 मार्क्स के लिए पूछा होता है, कुछ न्यूमेरिकल 16 मार्क्स के लिए पूछा होता है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि गियर ब्लैंक डिजाइन इज नॉट एक्सपेक्टेड। 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं और तुम्हें बोलते हैं कि गियर ब्लैंक डिजाइन इज नॉट एक्सपेक्टेड, तो उसमें अपने को पार्ट ही सॉल्व करना है। लेकिन अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और गियर ब्लैंक डिजाइन चाहिए या नहीं चाहिए ये नहीं लिखा है, तो ये समझ जाना कि गियर ब्लैंक की डिजाइन एक्सपेक्टेड है करके, बिकॉज द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड फॉर 20 मार्क्स, राइट। सो ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग अंडर पार्ट ए, गिव हेडिंग एज पार्ट ए, और पार्ट ए को नाम देंगे गियर डिजाइन, ठीक है। लिखना चालू करेंगे। उसमें स्टेप नंबर 1 मैं आपके सहूलियत के लिए ये सामने भी रखता हूँ, जो मेरे पास स्कैन कॉपी है, ठीक है, आपके सहूलियत के लिए। बट आपको लिखना है, डोंट डिपेंड ऑन दिस पीडीएफ, काइंड रिक्वेस्ट, डोंट डिपेंड ऑन दिस पीडीएफ। ऐसा हो सकता है कि ये पीडीएफ में कुछ एरर्स हो, तो वो मैं आपको रियल टाइम में बताऊं, तो आई शुड बी इन अ पोजीशन टू सी दोज इन योर कॉपी व्हेनेवर एंड इफ वी नीड। ये कोविड का नाटक खत्म होता है तो
बट होपफुली इट विल बी ओवर बाय दिस ईयर. अगले साल में मोस्ट प्रोबेबली विल बी इन अ पोजीशन टू मीट. तो छोड़ो, वो बात की बात है. स्टेप नंबर 1 इज सिलेक्ट टूथ प्रोफाइल. स्टेप नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ टूथ प्रोफाइल. अब न्यूमेरिकल पर्पस अपने को समझ में आया कि टूथ प्रोफाइल तो दिया हुआ है, तो हम लोग इसके नीचे क्या लिख देंगे फिर कि 20 डिग्री फुल डेप्थ प्रोफाइल ऑफ गियर टूथ इज गिवन. ये हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 20 डिग्री फुल डेप्थ प्रोफाइल ऑफ गियर टूथ इज गिवन, एंड दैट कंप्लीट आवर स्टेप नंबर 1. राइट. तो आई होप आपने लिख लिया होगा. लेट अस मूव टू स्टेप नंबर 2. नाउ स्टेप नंबर 2 tells us to select the number of teeth on pinion. Step number 2 tells us to select number of teeth on pinion, और उसके लिए हमें डेटा बुक का टेबल नंबर 16-7 रेफर करने बोला है. तो मैं अभी आपके सामने डेटा बुक ओपन करता हूं और अपना स्टेप का नाम क्या है जो आप देख पा रहे हो. वी हैव टू सिलेक्ट नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन. लेट मी शेयर डेटा बुक इन फ्रंट ऑफ यू. Okay. So is data book visible to all people? Please reply in the chat window. Please reply in the chat window. Is data book visible to you all? Okay. Harshad Mishram and Gopal says yes. Fine. So as per step number 2. स्टेप नंबर 2 में अपने को बोला गया है कि टेबल नंबर 16-7 से डेटा बुक में से आप मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन सिलेक्ट करो. तो मैं डेटा बुक स्क्रॉल किया, टेबल नंबर 16-7 अपन ने ओपन किया सामने में, और वहां पे मैं देखता हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कहाँ पे दिए हुए हैं. पहला ऑप्शन काय के बारे में है, रिकमेंडेड मॉड्यूल, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का कुछ भी नहीं है. दूसरा क्या है, कॉम्पैक्ट डिजाइन, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का कुछ भी नहीं है. तीसरा क्या है, इकोनॉमिकल डिजाइन, इसमें है क्या, कहीं पे नहीं है. फिर चौथा क्या है, प्रीफर्ड नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन. ये अपना सेकंड स्टेप है. तो हम लोग राइट साइड में देखते हैं. 7 to 9 requires log addendum to avoid undercutting 25 degree pressure angle offered. Preferred. अपना प्रेशर एंगल 25 डिग्री है क्या, नहीं. अपना प्रेशर एंगल है 20 डिग्री. 10 is smallest number of teeth with 20 degree pressure angle requires long addendum, contact ratio critical. न्यूमेरिकल में कॉन्टैक्ट रेशो क्रिटिकल है, एडेंडम लॉन्ग है, ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं. तो हम लोग 10 जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, 12 मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फॉर फ्रैक्शनल एचपी ड्राइव. न्यूमेरिकल में फ्रैक्शनल एचपी ड्राइव ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं बोला हुआ. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, 14 मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फॉर 20 डिग्री स्टब टीथ. अपना 20 डिग्री है लेकिन स्टब टीथ है क्या, नहीं, फुल डेप्थ है. तो ये लाइन भी अपने को नहीं मैच करेगी. उसके बाद में लिखा होगा कि 90 इज मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फॉर 20 डिग्री फुल डेप्थ टीथ. राइट. अब इसमें क्या सारी चीजें मैच हो रही है, अपनी टूथ प्रोफाइल 20 डिग्री है, फुल डेप्थ है, तो हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ टीथ क्या लेंगे ऑन पिनियन इक्वल टू 90. तो स्टेप नंबर 2, आई विल शेयर दैट पीडीएफ वंस अगेन. So step number 2 में number of teeth on pinion from table number 16-7, we selected number of teeth on pinion TP denoted by TP as equal to 90. और ये 90 हमको कहाँ से मिला, डिजाइन डेटा बुक के टेबल नंबर 16-7. So this ends our step number 2. Now, since you know the velocity ratio, just let me share something else with you. Let me share that just hold on for a second. Okay, I think PPT is visible to you. ये PPT में हमने फॉर्मूले देखे थे, ये देखिए, ये फॉर्मूले आपके सामने मैंने शेयर किए थे. अच्छा, PPT विजिबल है सबको? प्लीज रिप्लाई इन चैट. PPT ओके ओके. तो पीपीटी में आप देखो, वेलोसिटी रेशियोज के मैंने 4 फॉर्मूले लिखे हैं आपके सामने. वेलोसिटी रेशियोज के अपने पास 4 फॉर्मूले. तो एक फॉर्मूला मुझे देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी रेशियो इज T1 by T2. वेलोसिटी रेशियो इज T1 by T2 where T is, where what is T? T is number of T. वेलोसिटी रेशियो इज T1 by T2 where, या फिर ये T1 T2 का यहाँ पे अपन ने जो सब्स्टिट्यूट यूज किया हुआ वो थोड़ा सा अलग है जो हमने न्यूमेरिकल में लिया उसके हिसाब से. हम यहाँ पे TP और TG एज्यूम करके चलेंगे. ठीक है. अब वेलोसिटी रेशियो अपना कितना है, 3. वेलोसिटी रेशियो अपना कितना है, 3 एज पर गिवन. नाउ
लेट मी ओपन दैट पीडीएफ फॉर यू। हाँ, वेलोसिटी रेशियो अपना 3 है। तो अगर मुझे पीजी निकालना है, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, अभी देखो फॉर्मूला याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ दिमाग में ये याद रखना है कि वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ आरपीएम, इट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ। अब ऑब्वियस सा क्वेश्चन ये आएगा कि सर न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू लेनी है और डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू लेनी है, ये कैसे याद करेंगे हम लोग। अभी देखो जो अपना वेलोसिटी रेशियो है वो 3 दिया हुआ है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, वेलोसिटी रेशियो गिवन इन द न्यूमेरिकल इज 3, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स ऊपर में न्यूमरेटर में जो नंबर आएगा वो बड़ा होना चाहिए, राइट, वो नंबर बड़ा होना चाहिए। तो फिर अगर नंबर ऑफ टीथ के हिसाब से हम फॉर्मूला जज करने जाए तो क्या वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टीथ विल बी नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, राइट, ये एक तरीका। दूसरा, अपने को पता है कि पिनियन छोटा होता है और गियर बड़ा होता है, तो क्या इससे हमें कॉमन सेंस नहीं लगा सकते कि अगर पिनियन छोटा है तो उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ भी कम रहेंगे, अगर गियर बड़ा है तो नंबर ऑफ टीथ उसके ऊपर ज्यादा रहेंगे, राइट, और इन दोनों का रेशियो जो होता है वो वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं हम लोग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर फाइंड आउट करने के लिए मुझे नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन जो अपन ने एज्यूम किए हैं उसको वेलोसिटी रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट विल गिव मी नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर which we denote by TG equal to number of teeth on pinion multiplied by velocity ratio, and that is equal to 57. तो स्टेप नंबर 2 में अपन ने नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एज्यूम किए फ्रॉम टेबल नंबर 16-7 और नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर हमने कैलकुलेट किए, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3. Your step number 3, wait a minute, step number 3 is find out pitch diameter of pinion. When I say pitch diameter, I mean PCD or pitch circle diameter. Pitch diameter का ही मीनिंग होता है pitch circle diameter. So find pitch diameter of pinion in terms of module M. We have to find out pitch circle diameter of pinion in terms of module. तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला लगेगा जो डायमीटर और मॉड्यूल को कनेक्ट कर रहा है। अब हमने ये जो आपके सामने मैंने पीपीटी शेयर की उसमें मॉड्यूल का फॉर्मूला आपके सामने रखा है मैंने, मॉड्यूल इज डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ। नाउ व्हेन आई से मॉड्यूल ऑफ पिनियन, क्या मैं इसके सामने फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, इट इज पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। यस, तो अगर मुझे यहाँ से पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन निकालना है तो क्या मैं मॉड्यूल को नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अगेन कमिंग बैक टू आवर पीडीएफ, देखिए पिच डायमीटर ऑफ पिनियन डिनोटेड बाय डीपी, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन डिनोटेड बाय डीपी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूल। वी नो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एज पर स्टेप नंबर 2 इज 19, so पिच सर्कल डायमीटर of pinion in terms of module we will get it as 19 multiplied by module. Is this step clear? Yes, very much, very simple step. Next step is step number 4. ये अपना आज का लास्ट स्टेप है बिकॉज अपना टाइम खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4. हियर वी फाइंड आउट पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ पिनियन। ध्यान में रखना, काय का पिच लाइन वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग? पिनियन का। एक ऑब्वियस क्वेश्चन मेरे सामने ये आना चाहिए कि पिनियन का ही पिच लाइन वेलोसिटी क्यों? बिकॉज वी आर डिजाइनिंग गियर, वी डिजाइन एनीथिंग फॉर मैक्सिमम सेफ्टी। अगर मेरा डिजाइन पिच लाइन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है तो मुझे ऐसा पिच लाइन वेलोसिटी चाहिए जिसका वैल्यू मैक्सिमम हो, और अपने को पता है कि पिनियन और गियर्स में से तेज कौन दौड़ता है? पिनियन। इसलिए हम लोग पिच लाइन वेलोसिटी जो निकालते हैं वो पिनियन की निकालते हैं। और इसके सामने मैंने आपका यूनिट भी लिखा हुआ है। यूनिट कौन सा चाहिए मुझे? यूनिट चाहिए मीटर पर सेकंड। तो आप जब नोट करोगे तब ये आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको नोट करना है कि पिच लाइन वेलोसिटी पिनियन की निकाली जाती है, जिसको अपन वी का सी से डिनोट करते हैं, और उसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होता है।
Peak line velocity is nothing but peripheral velocity. Peak line velocity is nothing but peripheral velocity, which is given by pi dn, which is given by pi dn divided by 60, which is given by pi dn divided by 60. अब यहाँ पे आपको डिवाइडेड बाय 60 नहीं दिख रहा है, बट डिवाइडेड बाय 60 अपने को लगेगा. क्यों? क्योंकि डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 1000 भी लगेगा अपने को. क्यों? तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको चेंज करना है. इट इज पाई डी पी एन बी डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1000. वाई? नाउ अपने को जो पिच लाइन वेलोसिटी चाहिए वो मीटर पर सेकंड में चाहिए. पिच लाइन वेलोसिटी अपने को चाहिए मीटर पर सेकंड में. और अगर अपन फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें डीपी है और एनपी है. फाई तो कांस्टेंट है, उसकी कोई जरूरत नहीं, पर डीपी और एनपी. डीपी की जो वैल्यू अपन ने निकाली, डीपी की जो वैल्यू अपन ने निकाली वो अपने को मॉड्यूल में मिली. डीपी की वैल्यू अपने को मॉड्यूल में मिली है. और हमेशा ध्यान में रखना कि मॉड्यूल का जो यूनिट होता है वो एमएम होता है. मॉड्यूल का यूनिट इज एमएम. मॉड्यूल का यूनिट इज एमएम. दैट मीन ये जो डायमीटर का वैल्यू अपने पास है वो एमएम में है. अपने को वेलोसिटी मीटर में चाहिए, तो अपने को ये एमएम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, राइट? तो इसलिए अपन इसको डिवाइड करते हैं 1000 से. नाउ कमिंग टू एनपी. एनपी जैसे देखते पता चल रहा है, इट इज आरपीएम ऑफ पिनियन विच इज गिवन एज 1440 एज पर न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल में पिनियन आरपीएम दिया हुआ है 1440. अब ये रोटेशन पर मिनट है, पर अपने को वेलोसिटी पर सेकंड में चाहिए, तो इसको भी डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा. इसलिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं. dp is pi dp np divided by 60 multiplied by 1000 in the denominator itself. So we will stop here. In the next class, I would like to know the value of dp from you people in meter per second. One more important thing I would like to share with you people is, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए मुझे कि सब लोग